Bismillahirrahmanirrahim. Hope you are all fine. In today's lesson, we will start to solve some past paper questions relating to the programming, because in our previous so many lectures, we have revised all of our basic topics of programming that we studied either in the class or not. We started them again in our live classroom, and we have gone through all the topics which are components of programming. And in the last lesson, when we completed our two-dimensional arrays topic, that means we have done all the revisions and all the component studies. And now from today, we are into second phase of our paper 2. In this second phase, what we are going to do is we will start solving the programming problems which are in the past papers. Now, coming to the papers and their structures and their details, let's give a few minutes to recall that in the paper 2, 50% of the marks are relating to programming. And as I have told you earlier, there is a question paper of practical problem that is given to the students in February, and students are asked to work on this task under the guidance of their teacher in the school and solve that task. The students continue to solve that problem for February, March, April, May, and after 4 months of detailed working, they go to the exam and they are asked questions about that programming which they have done in the school. Now we will come to this phase, and if you see on your screen, I have sorted out a pre-release material that is from the past papers, and it shows you 2010/02 for the examination from 2015. I have selected the most earliest question paper to start with, and this two-page paper is called pre-release material. If you see this, the first page is a title page, and on the second page there are some lines of tasks, and that's all. It is a two-page document, and it is not given to the students in the paper or exam. It is that page that comes in February, January or February, and this is called as pre-release material. We can see over here, this page says in this line, specimen pre-release material, because it is a specimen paper which I have selected for our today's study. It is a sample paper that was created by Cambridge to show the students that how the paper will include something from the given task. Now, starting with it, it says Cambridge International Exam, Computer Science, Paper 2, Problem Solving, Sample Pre-Release Material. No additional materials are required. He says that whatever is written in the page 2 is enough for your task. This material should be given to candidates up to 6 months. It starts from the Cambridge in December. That is why they mention it 6 months. Read the instructions. First, we will read the instructions, and these are common for every year. Candidates should use this material in preparations for the examination. Candidates should attempt the practical programming tasks using their chosen programming language. कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने स्कूल में पढ़ी है उसके अंदर आपने इसका सॉल्यूशन डेफिनेट 100% जरूर अटेम्प्ट करना है. और उसके बाद अब हम इसके अगर पेज 2 में आ जाते हैं, कैंडिडेट्स प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंक्लूड अटेम्प्टिंग द फॉलोइंग प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग टास्क. वो बार बार ये कह रहा है कि आपको इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना है. हाँ जी हैदर. हाँ जी
सर मैं कह रहा हूँ सिर्फ हम दोनों ही हैं, बाकी बच्चे किधर हैं? यार सबको इनवाइट किया हुआ है, आप देखो कोई भी नहीं है, मुझे तो आप एक दो ही नजर आ रहे हो। हाँ सर वो यहाँ कह रहा है मैं रिक्वेस्ट भेजी, आप एक्सेप्ट करें। अच्छा मैं देखता हूँ। यार अयान को मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, अब उसको बोलो एक्सेप्ट करे उसको। कहता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अब हम इस क्वेश्चन की तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि उसने शो किया हुआ है देयर आर 3 हेडिंग्स जो आपको नजर आएंगी एज टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। पूरे क्वेश्चन को वो 3 टास्क में डिवाइड करेगा और हमें वो रिकमेंड करेगा कि वी शुड स्टार्ट विद द टास्क नंबर 1, then we go to the task number 2 and finally when the 1 and 2 is done उसी की कोडिंग को थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो टास्क नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो 2015 है, इट इज द सिंपलेस्ट वन ऑफ प्रोग्रामिंग। थोड़ा सा अगले पेपर्स में शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो, मैंने सबसे सिंपल वाले को सबसे पहले चूज किया है। इसके टास्क 1 को हम अभी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम टास्क 1 पढ़ते हैं। वो कहता है इनपुट एंड स्टोर द नेम्स एंड मार्क्स फॉर 30 स्टूडेंट्स। दिस इज वन टास्क। उसने हमें डिमांड की है कि एक क्लास के 30 बच्चों का नाम और उनके नंबर्स का इनपुट लें हु हैव सेट 3 कंप्यूटर साइंस टेस्ट, जहां पे हर बच्चे ने कंप्यूटर के 3 टेस्ट दिए हुए हैं। इसका मतलब है आपने बच्चे का नाम पूछना है और उसके बाद आपने उसके 3 टेस्ट जो हैं उनके मार्क्स उससे ले लेने हैं। अगली लाइन में वो क्या कहता है वो हम उसके बाद देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले इसमें आके इस पहली लाइन का सल्यूशन बनाएंगे हम कि इसकी कोडिंग जो है वो किस तरह से आएगी। Input and store the names and marks for 30 students who have sat 3 computer science tests। हम लोग VB में आएंगे, ये हमारे पास विजुअल बेसिक है, ये उसकी स्क्रीन आ गई और यहाँ पे हम स्टार्ट लेंगे। वन थिंग इज श्योर, जब आपको पूरी क्लास के बच्चों का डाटा कलेक्ट करना है तो मैं ये आज या आप हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स बनाएं। हमें यहाँ पे अरेज की हेल्प लेनी होगी और हमें यहाँ पे लिखना होगा डिम नेम्स। मैं 30 यूज नहीं करूंगा क्योंकि फिर मुझे 30 इनपुट्स बार बार यहाँ पे इनपुट करने में मेरी पूरी क्लास चली जाएगी। मैं अभी इसको 3 तक रखूंगा, बट वी assume that this is for 30 students। dim names 3 as string, क्योंकि नाम हमेशा स्ट्रिंग में सेव होता है। उसके बाद dim T1 of 3, ये टेस्ट 1 है 3 बच्चों के लिए, T2 for 3 students and T3 for 3 students as integer, क्योंकि कैम्ब्रिज में पॉइंट्स में मार्क्स नहीं आप अवार्ड कर सकते। तो ये डिक्लेरेशन से हमने ये फिक्स कर लिया कि नाम जो है वो नेम्स में जाएंगे और मार्क्स जो हैं उन बच्चों के वो T1, T2 और T3 में जाएंगे। उसने बोला है सबका इनपुट लें। मैं नेक्स्ट लाइन में आके पहले एक प्रिंट करा लेता हूं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इस कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आप लिखें एंटर नेम्स and marks for 3 tests of all students। इसकी को प्रॉपर अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ इंटीमेशन कि आपने सारे बच्चों के मार्क्स और नाम एंटर करने हैं
अब उसके लिए इस हेडिंग के बाद आपको फॉर लूप लगाना है, फॉर m इज इक्वल टू 1 2 3 और नेक्स्ट उसने खुद से लिख लिया। ये 3 बच्चों की क्लास हमने ऊपर नेम्स में बनाई हुई है, इसलिए लूप 3 का लगा है। अगर आप पेपर में लिख रहे हैं तो आपको ऊपर डिम नेम्स 30 लिखना है और आपको यहाँ पे लूप भी 30 का ही लगाना है। अब इस लूप के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, और मुझे 1 भी लिखना है साथ, तो मैं यहाँ पे m लिख दूंगा। ये m जब उसके साथ कनेक्ट होगा ये लाइन बनेगी एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट 1, और उस 1 स्टूडेंट के 3 मार्क्स चाहिए आपको, उससे पहले इनपुट करा लें। आप यहाँ पे लिखें नेम्स ऑफ m इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। आप पहले स्टूडेंट का नाम एंटर करेंगे, वो नेम्स 1 में सेव हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट से वापस जाएगा, दूसरे का सेव करेगा, तीसरे बच्चे का नाम सेव कर लेगा। ये लूप पूरी क्लास के बच्चों के नाम जो है उनको स्टोर करा लेगा। साथ ही 3 टेस्ट चाहिए, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर 3 टेस्ट मार्क्स ऑफ दिस स्टूडेंट। ये एक मैसेज बनाया हमने। अब हम यहां पे लिखेंगे T1 ऑफ m इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। पहले टेस्ट के मार्क्स का इनपुट ले लेगा वो। T2 ऑफ m इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, और फिर T3 ऑफ m इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ये आपके इनपुट्स को स्टोर कर लेगा। इसको प्ले करके देखते हैं। उससे पहले जो है एंड सब से ऊपर आप कंसोल डॉट रीड की जरूर लगा लें, कंसोल डॉट रीड की, और इसके बाद इसको हम प्ले करते हैं। इसकी स्क्रीन को शेयर करते हैं अभी। इसकी स्क्रीन को, एक मिनट, ये इसकी स्क्रीन आ गई और ये शेयर हो गई। अब ये देखें यहां पे लिखा हुआ है एंटर नेम्स ऑफ मार्क्स, एंटर नेम्स एंड मार्क्स फॉर 3 स्टूडेंट्स। ऊपर वाली लाइन को भी ठीक कर लेते हैं। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट नंबर 1, और यहां पे सपोज मैं स्टूडेंट नंबर 1 लिख देता हूं। अब वो कहता है एंटर 3 टेस्ट मार्क्स ऑफ दिस स्टूडेंट। तो सपोज द टोटल मार्क्स वर 20, तो इसका ये फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स दे दिए, सेकंड के दे दिए और थर्ड के दे दिए। जब आप 3 टेस्ट के मार्क्स इनपुट कर देंगे तो अब ये आपको कह रहा है कि एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट नंबर 2। मैं यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 2 दे दिया। अब वो उस सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स पूछ रहा है। सपोज ये लाइक बच्चा है, इसके सारे पूरे मार्क्स हैं। नाउ इट कम्स टू स्टूडेंट नंबर 3, और यहाँ पे आप थर्ड स्टूडेंट का नाम लिखते हैं। अगर वो कोई इतना लाइक बच्चा नहीं है, उसके मार्क्स कम है सपोज, तो ये मार्क्स के ऊपर कोई कमेंट नहीं देगा, और ये इसने थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स को भी स्टोर कर लिया। अब ये रीड की पे पहुंच गया है। जब आप क्लिक करेंगे स्क्रीन क्लोज हो जाएगी। इस तरह से हमने अभी वो थोड़ी सी कोडिंग कंप्लीट की है, दैट इज रिलेटिंग टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्री रिलीज मटेरियल। ये आपके सामने स्क्रीन में नजर आ रही है। वो पहली लाइन जो है उसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। एंटर नेम एंड मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास। ये कुछ बेहतर है पहले वाली वर्डिंग से। अब वापस प्री रिलीज मटेरियल में आते हैं और वहां पे देखते हैं कि उसके आगे उसने क्या पूछा है। एक लाइन की कोडिंग तो हमने कर ली। यहां से आप दोबारा जरा इसको रीड करें तो
input and store the names and marks for 30 students who have sat 3 computer science tests. ये पहली लाइन को हमने वहां पे कोड कर दिया है। इसका काम पहली लाइन से रिलेटेड प्रोग्रामिंग इज डन। अब उसके बाद वो कहता है the test 1 is of 20 marks, the test 2 is of 25 marks and the test 3 is of 35 marks। ये जितना मैंने रीड किया है, दिस इज ओनली एन इंफॉर्मेशन। इसमें उसने कहा नहीं कि कुछ इसके रिलेटेड कोडिंग करें। हम इससे मजीद आगे चलते हैं। वो कहता है यू मस्ट स्टोर द नेम्स इन अ 1 डायमेंशनल अरे। हमने वाकई ही ऐसे किया है, हमने नाम अरेज में सेव कर लिए हैं। एंड द मार्क्स, हमने बच्चों के 3-3 टेस्ट के मार्क्स भी उधर सेव कर लिए हैं। अब वो फर्दर कहता है एंड टोटल स्कोर फॉर ईच स्टूडेंट इन 1 डायमेंशनल अरे। उसको हर बच्चे के तीनों टेस्ट का टोटल भी चाहिए। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। हम दोबारा वीबी में आते हैं। अच्छा जी, हमारी वीबी कहाँ चली गई? यहां पे हम उसमें सम भी ऐड कर लेते हैं। अब सपोज दिस स्क्रीन इज गिवन एज अ क्वेश्चन इन द पेपर, और वो कहता है कि इस कोडिंग के अंदर मजीद कोड ऐड करें जो हर बच्चे के तीनों टेस्ट के मार्क्स को प्लस करके अलहदा से सेव कर ले। तो आपने क्या करना है, वी नीड अ वेरिएबल डिम टोटल, जितने बच्चे पहले हैं उतने साइज का ही अरे होगा इधर। ये हमने डिक्लेयर कर लिया। मेरे पास एक एक्स्ट्रा एरे आ गई है जिसका नाम टोटल है। इसमें मैं हर बच्चे के T1, T2, T3 को प्लस कराऊंगा। वो प्लस वाली एक्टिविटी भी फॉर लूप के अंदर होनी चाहिए क्योंकि हर बच्चे के टोटल मार्क्स चाहिए। पहले मैं सोचता हूं कि मैं यहां पे प्लस करा लेता हूं, लेकिन इस जहां पे आपको कर्सर नजर आ रहा है वहां पे प्लस करवाने की लॉजिक इसलिए नहीं बनती कि पहले आप 3 टेस्ट के मार्क्स इनपुट करवाएंगे, उसके पास वो मार्क्स होंगे तो वो प्लस करेगा। इसलिए इस लोकेशन को छोड़ के आपको इन 3 इनपुट के आगे जाना पड़ेगा ताकि मेमोरी में मार्क्स एंटर हो गए हों। तो वो क्या करे, वो लिखे टोटल ऑफ m is equal to T1 of m plus T2 of m and plus T3 of m। इस लाइन से टोटल 1 में पहले बच्चे के मार्क्स का टोटल आ जाएगा, टोटल 2 में दूसरे बच्चे का और टोटल 3 में थर्ड स्टूडेंट का। तो पूरे की पूरी क्लास, चाहे वो 30 बच्चों की है चाहे वो 3 बच्चों की है, उन सब के मार्क्स का टोटल भी अब हमारे पास एग्जिस्ट करता है और हम जब चाहें हम उसको यूज कर सकते हैं। दोबारा प्री रिलीज वाले पेज पे चलते हैं और देखते हैं उसके आगे वो क्या पूछता है। वो कहते हैं ऑल द मार्क्स मस्ट बी वैलिडेटेड ऑन द एंट्री एंड एनी इनवैलिड मार्क्स रिजेक्टेड। अब वो कह रहा है कि मैंने आपको ऊपर जो बताया है कि पहला टेस्ट 20 का है, उधर चेक लगाएं कि 21 मार्क्स एंटर नहीं होने चाहिए और -1 वाले मार्क्स भी एंटर नहीं होने चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पे अब इसमें वापस प्रोग्रामिंग में जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे ये वीबी में आते हैं और हम कुछ सेट करते हैं इसको। ये हम आगे उस लाइन में T1 of m is equal to console.readline, ये वो पहली लाइन है जिसके टेस्ट के मार्क्स 20 हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है डू, और यहाँ पे आपको लिखना है लूप वाइल। इन 2 लाइंस की एडजस्टमेंट ये है कि
लूप वाइल से वापस ऊपर चला जाएगा, यानी दोबारा इनपुट मांगना शुरू करेगा। कब इनपुट मांगना स्टार्ट करेगा? लूप वाइल इफ या t1 of m is less than 0 or t1 of m is greater than 20। ये आपने इसको कंडीशन बताई है। यहाँ पे एक सेट ऑफ ब्रैकेट और लगाएंगे ताकि कोई डाउट ही ना रहे। अब ये चेक लग गया इसके ऊपर। मैं 2 लाइनों को 3 को हाईलाइट करता हूं। ये कोडिंग बन गई है कंबाइंड कोड। इसमें क्या है? एंटर 3 टेस्ट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट के बाद वो पहले आएगा, वो आपसे T1 के मार्क्स पूछेगा। अगर आपने 22 नंबर दे दिए हैं तो वो लूप वाइल की कंडीशन ट्रू होने की वजह से वापस डू पे जाएगा और अगली लाइन में फिर आपसे टेस्ट 1 के मार्क्स पूछेगा। अगर ऐसा होता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये टेस्ट 1 के मार्क्स दोबारा मांग रहा है या ये अगले टेस्ट 2 के मार्क्स मांग रहा है? मुझे तो नहीं समझ आएगा। मुझे यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा। ये जो कंडीशन है मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ। ये मैंने कंट्रोल C से कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे ये भी लिखता हूँ इफ दिस, कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर एक मैसेज लिख दो और वो मैसेज ये है console.writeLine you entered wrong marks, please re-enter between 1 to 20। ये आपकी स्टेटमेंट भी उधर एक ऐसी प्रिंट होगी कि ये अब हमें गाइड भी करेगा लिखा हुआ। मुझे पता चल जाएगा कि मैं गलत मार्क्स दिए हैं और ये मेरे से दोबारा मांग रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइनों का ये सेट बन गया है जो आपको सिलेक्ट किया हुआ नजर आ रहा है ब्लू में। डू से लेकर लूप वाइल तक ये पहले टेस्ट को हैंडल करता है। अगर आपने 15 का इनपुट दिया है ना तो ये इफ कंडीशन ट्रू होनी है और ना ही ये जो रेड में लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा। आगे चल के ना ही लूप वाइल ने ट्रू होना है, तो ये सीधा सीधा आगे T2 वाले में चला जाएगा। अब आप इसको दूसरों पे अप्लाई करना है तो मैं अभी यहाँ से ये T2 और 3 निकाल देता हूँ और मैं इस सारी कोडिंग को कॉपी करता हूँ। ये कंट्रोल C किया और यहाँ पे आप इसको कंट्रोल V करें। दूसरे टेस्ट के मार्क्स उसने 25 बताए हुए थे। इस जो कॉपी पेस्ट करवाया है ये 0 से लेकर, पहले तो ये सारे T1 जो हैं इनको आप T2 करें क्योंकि ये अब दूसरे टेस्ट की कोडिंग बना रहे हैं हम। ये भी T2 है, दिस इज आल्सो T2 एंड द मार्क्स आर नाउ 25। ये राइट लाइन में कोई चेंज नहीं आएगा या यहाँ पे ये 25 होगा और फिर इधर दिस इज 2 एंड दिस इज 25। ये आपने दूसरे टेस्ट के ऊपर भी वो चेक लगा दिया। कोडिंग लिखने की बजाय मैंने कॉपी करके पेस्ट करा ली है और उसमें चेंजेस कर लिए हैं। अब तीसरा टेस्ट रह गया है, उसको भी मैंने पेस्ट कर लिया और इसका जो T1 है वो अब T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहली लाइन में 3, यहाँ पे भी 3 और उसके मार्क्स थे 35। यहाँ पे आए, इसको भी 35 करें और यहाँ पे 3, ये भी 3, 35 और ये सम में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसने तो सिर्फ प्लस कराना है। तो इस तरह से ये जितना स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है पहले टेस्ट के नंबरों पे चेक लग गया है, दूसरों पे भी लगा दिया है, तीसरे पे भी चेक लगा दिया है और वो चेक हमारे क्वेश्चन में दिए हुए सिचुएशन की वजह से लगा है। मैं एक दफा फिर आपको प्री रिलीज खोल के ये रिकॉल कराता हूं। आप ये देखें, उसने लिखा था दूसरी लाइन में आए टास्क 1 की, टेस्ट 1 इज आउट ऑफ 20 मार्क्स।
हमने वो फिक्स कर दिया। टेस्ट 2 इज आउट ऑफ 25 मार्क्स एंड द टेस्ट 3 इज आउट ऑफ 35 मार्क्स। उधर वो इफ्स और डू वाइल्स लग गए हैं। अब उधर इस रेंज से बाहर का इनपुट दिया ही नहीं जा सकता। मैं इसको प्ले करता हूं। अब ये पहले हम वीबी में आ गए और वीबी में आके इसको प्ले करते हैं। ये इसकी आउटपुट स्क्रीन आ गई। इस आउटपुट स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं और अब हम इधर एक सीरीज ऑफ इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे। पहली लाइन में एंटर नेम एंड मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास, राइट। द फर्स्ट स्टूडेंट इज अयान, ठीक है। अब वो कहता है एंटर द 3 टेस्ट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। मैं आपको चेक करवाने के लिए, पहले टेस्ट के मार्क्स 20 थे, मैंने सही इनपुट दिया है 18 का। उसने 18 का इनपुट रिसीव कर लिया। उसके बाद अब वो दूसरे टेस्ट पे आ गया है। दूसरे टेस्ट में आपने 25 में से बताना है। मैंने दूसरे टेस्ट के मार्क्स 22 दे दिए, वो भी एक्सेप्ट हो गए। और 35 वाला लास्ट था, उसमें से 32 दे दिए। उसने तीनों को एक्सेप्ट करके प्लस करवा के स्टोर करा लिया। दूसरे स्टूडेंट पे आते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं हैदर, और 20 में से 22 मार्क्स देंगे अगर, तो वो एरर दे दी उसने, यू एंटर्ड रॉन्ग मार्क्स, प्लीज री एंटर बिटवीन 1 and 20। मैंने फिर गलती से 21 मार्क्स दे दिए। वो फिर डू वाइल की वजह से वापस जाके फिर एरर दे रहा है। अगर आप यहाँ पे 100 दफा मिस्टेक करेंगे, ये आपको आगे कोडिंग में नहीं लेके जाएगा, ये अब आपको इधर रोक के रखेगा। और जब आपने ये उसके फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स विद इन रेंज वाले बताए हैं, ये एक्सेप्ट कर जाएगा उसको। अब उसने एरर मैसेज नहीं दिया, इस फर्स्ट टेस्ट को उसने ले लिया है, ये सेकंड टेस्ट आ गया और ये जो है ये थर्ड टेस्ट आ गया। उसने थर्ड स्टूडेंट को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब हम लास्ट स्टूडेंट पे आते हैं और लास्ट स्टूडेंट में अगर हम यहाँ पे ये नाम लिखते हैं और आप इसको अगर माइनस की वैल्यू देंगे, वो भी उस रेंज में वो देख लेगा और वो हमें बता रहा है यू एंटर्ड द रॉन्ग मार्क्स। नेगेटिव में चले गए हैं। और अगर आप फुल मार्क्स देते हैं देन देयर इज नो क्वेश्चन, एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरे के 25 में से 25 दे दिए, एक्सेप्ट कर गया। तीसरे के 35 दे दिए, उसने नहीं बोला कि जाजिब ने तो पिछली 4 क्लासेस नहीं पढ़ी तो ये पूरे मार्क्स कैसे ले गया है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग कोड। तो इस तरह से आपकी इस प्रोग्रामिंग में जो आपको नजर आ रहा है, अभी दोबारा कोडिंग में आते हैं। ये कोडिंग हमें हमारा टास्क 1 कंप्लीट करके दे रही है। ये यहाँ पे आप देखें, इधर जो लिखा हुआ है उसकी बेसिस पे रिजल्ट बन रहा है। चेक्स हमने खुद से लगाए हैं, वो हमारे लगाए हुए चेक्स को फॉलो कर रहा है। आप वापस चलते हैं उधर उस पेज के ऊपर जिससे हमने क्वेश्चंस लिया हुआ है, तो ये टास्क 1 आ गया। ऑल द मार्क्स मस्ट बी वैलिडेटेड ऑन द एंट्री। हाँ, ऑन द एंट्री का मतलब है कि जब आप इनपुट करते हैं उसी वक्त चेक होना चाहिए, और हमने वो चेक कर लिया। यू मे एज्यूम दैट द स्टूडेंट्स नेम्स आर यूनिक। वो कहता है इस हेडिंग में ना जाएं कि वो ये भी चेक करे कि एक बच्चे का नाम पहले से है तो दूसरी दफा क्यों आया है। लेट अस सपोज के बच्चों के नाम डिफरेंट हैं सबके, तो ये आपकी 15, 20, 25 लाइनों की कोडिंग ने टास्क 1 को पूरा कर दिया। अब इससे मजीद आगे चलें तो टास्क 2 में वो क्या कहता है, कैलकुलेट एंड स्टोर द टोटल स्कोर फॉर ईच स्टूडेंट। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड देन कैलकुलेट द एवरेज स्कोर फॉर द होल क्लास। ठीक है, 1 मिनट का काम है ये। अभी पूरी क्लास की एवरेज निकालनी है। वापस वीबी में चलते हैं। ये वीबी में आ गए, जहां पे आपने टोटल करा लिया हुआ है। इसमें ये नेक्स्ट से बाहर आए और यहाँ पे आके हम एक वेरिएबल बनाते हैं पहले।
एक मिनट। अच्छा जी, ये हम उसके नेक्स्ट से बाहर आ गए और जहां पे आपको एक वेरिएबल चाहिए डिम। सबसे पहले टोटल तो हमने कर लिया हुआ है हर बच्चे का, अब हमें चाहिए सम, और फिर उसके बाद एक हमें चाहिए इसको सम एज इंटीजर और डिम एवरेज एज डबल। अब सम कैसे आएगा? सबसे पहले स्टार्ट में आप लिख लें कि सम 0 है, और फिर एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर m इज इक्वल टू 1 टू 1 2 3। और इस फॉर लूप के अंदर आप ऊपर वाले टोटल्स को प्लस करते जाएं। आप लिखें सम इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू ऑफ सम प्लस टोटल ऑफ स्टूडेंट। तो ये लूप जब 3 टाइम्स चलेगा, ये सम के अंदर टोटल्स को प्लस करवाता जाएगा और सम की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। आखिर में जब लास्ट स्टूडेंट तक हम पहुंच जाएंगे तो सम के अंदर पूरी क्लास के बच्चों के मार्क्स का सम आ जाएगा। अब उसकी एवरेज निकालनी है, तो एक लाइन का काम है, आप लिखोगे एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो 3 बच्चे हैं, मैंने कोडिंग में एडजस्ट किए हुए हैं, तो 3 से डिवाइड करने की वजह से इस पूरी क्लास की एवरेज भी निकल आएगी। और ये टास्क 2 में उसने यही बस पूछा हुआ है और हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। दोबारा उस प्री रिलीज के पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखो कैलकुलेट एंड स्टोर द टोटल स्कोर फॉर ईच स्टूडेंट एंड कैलकुलेट द एवरेज स्कोर फॉर द होल क्लास। ठीक है, इट इज डन। आउटपुट ईच स्टूडेंट्स नेम फॉलोड बाय देयर टोटल स्कोर। ठीक है, वो कहता है हर बच्चे का नाम और उसका टोटल स्कोर जो है वो प्रिंट करा दें। वापस आ जाएं प्रोग्रामिंग में, ये हम प्रोग्रामिंग में आ गए। ठीक है जी, यहां तक हमने काम कर लिया। ये लास्ट लाइन है स्क्रीन की, फॉर m इज इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि पूरी क्लास को प्रिंट करवाना है, फॉर लूप इधर जरूरी होगा। और इसके अंदर लिखें कंसोल डॉट राइट लाइन स्टूडेंट नेम, ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एंड लगाएं और नेम्स m, जो भी आपने इनपुट दिया था पहले बच्चे का नाम आ जाएगा, फिर एंड लगाएं इसके साथ और उसके साथ लिखें हैज गॉट टोटल मार्क्स ऑफ, कि इसने इतने टोटल मार्क्स लिए हैं। ये फिर एंड लगा दें और टोटल हमने ऊपर लिखा हुआ है TOTL ऑफ m। ये लाइन क्योंकि फॉर लूप के अंदर है तो ये 3 दफा रिजल्ट में आएगी। और स्टूडेंट नेम अयान हैज गॉट टोटल मार्क्स ऑफ 80, या जितने भी बनते हैं, फिर दूसरे बच्चे के लिए, फिर तीसरे बच्चे के लिए, और लास्ट में उसने कहा है कि एंड में पूरी क्लास की एवरेज शो करें। वो लूप से बाहर आएगी, कंसोल डॉट राइट लाइन द एवरेज मार्क्स फॉर द होल क्लास आर, ये एंड लगाएं और आपके पास एवरेज में मार्क्स पड़े हुए हैं। दिस इज एंड ऑफ टास्क नंबर 2। सब बच्चों के नाम के साथ उनके टोटल मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे और फाइनली उस क्लास की जो एवरेज मार्क्स हैं वो भी आपको वहां पे शो होंगे। ये लास्ट टाइम इसको खोलते हैं अब, तो इसमें देखें आप टास्क 2 की रिक्वायरमेंट्स को हमने पूरा कर दिया। टास्क 1 भी पूरा हो गया, टास्क 2 भी पूरा हो गया। अगर हमारे पास 10 मिनट और होते, वी वर ऑलमोस्ट डन विद द टास्क 3। लेकिन टास्क 3 मैं आपको कल कराऊंगा, अभी आप लिमिटेड रहें टास्क 1 एंड 2 पे। जब तक आप वीबी में इसको कोडिंग को देख के दोबारा कोड नहीं करेंगे, आप इसको मार्क नहीं कर सकते कि मुझे समझ में आ गया। Now it is your duty to at least revise it once on programming
by typing the code. यहाँ से देख लें जो मैंने लिखा है, word to word यही type कर लें, लेकिन करना जरूर है. So this is all about today's lecture. We are going to stop this lesson and then we will come in 5 minutes for the question and answer.